लो बेटा हुण आपां करना है फोटो कैमिकल इक्विलिब्रियम। फोटो कैमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इनू आपां कहने हैं फोटो स्टेशनरी स्टेट। बेटा कई फोटो कैमिकल रिएक्शन जोड़े रिवर्सीबल इन नेचर होंगे तो उन्होंने फॉरवर्ड रिएक्शन जोड़ा जे फॉरवर्ड रिएक्शन जोड़ा फोटो कैमिकल रिएक्शन है तो बैकवर्ड रिएक्शन या फोटो कैमिकल रिएक्शन हो सकता है या वो थर्मल रिएक्शन हो सकता है। सो सम फोटो कैमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सीबल इन नेचर। In these reactions, the forward reaction is a photochemical process. Means reaction occur in the presence of light by absorbing light, visible light or UV light. Whereas the backward reaction may be photochemical, may be either photochemical reaction or thermal reaction, thermochemical reaction. So consider the journal reaction. Consider the journal photochemical reaction. Journal photochemical reversible reaction. A. Absorb the light and get changed into the B in the forward direction, and the backward direction is again light occur in the presence of light, backward direction. और एक ही हो सकता बेटा ए फॉरवर्ड रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस होए फोटोकैमिकल रिएक्शन होए, बैकवर्ड जोड़ा थर्मल रिएक्शन होए। सो दो रिएक्शन शुरू आप दस दिते। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन की होगा बेटा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन की स्टेज रीच हो जाएगी जिथे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जोड़ा वो किहदे बराबर हो जाएगा, बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। सो आफ्टर अचीविंग दिस equilibrium state, light absorb cause no further chemical reaction or further chemical change, and this is the state of photochemical equilibrium or photostationary state। ठीक है जी। सी सो विद द पैसेज ऑफ टाइम की होगा फॉरवर्ड रिएक्शन जड़ा ए बीच भी चेंज होएगा, बी बैक लाइट अगर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही हो रहा बी बैक हो सकता है, या फिर ए डायरैक्टली लाइट चेंज हो लाइट की प्रेजेंस बीच फॉरवर्ड रिएक्शन होएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन जो थर्मल होएगा। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन a stage is reached जिथे बेटा की होना डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाना। ए जोड़ा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज़ फोटोकैमिकल रिएक्शन इन फॉरवर्ड फर्स्ट स्टैप फर्स्ट केस विच इन फर्स्ट केस। ठीक है जी। की होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज़ फोटोकैमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिन्ने मॉलीक्यूल ए दे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बीच चेंज होंगे उन्ने मॉलीक्यूल एट द सेम रेट लाइट की प्रेजेंस विच एज बैक चेंज होंगे, या फिर जिन्ने मॉलीक्यूल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होएगा, रेट ऑफ फोटोकैमिकल रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ थर्मल रिएक्शन। मीन जिन्ने मॉलीक्यूल ए दे लाइट की प्रेजेंस विच बीच चेंज हो रहा, बी दे उन्ने ही मॉलीक्यूल उसी रेट पे थर्मली एज चेंज हो रहा। क्लियर। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन स्टेज में बी रीच्ड, स्टेज इज रीच्ड
when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction after this state the light absorbed causes no further chemical change. This is the state of photochemical equilibrium. State of photochemical equilibrium or photostationary state. Clear beta? Some examples of reversible photochemical reactions are beta पहली example photochemical decomposition of breakdown of photochemical decomposition of sulfur trioxide SO3 but a two molecule of sulfur trioxide reversibly forward reaction भी photochemical light ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ backward reaction भी light ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ the stage reached dynamic equilibrium attained where no further chemical change occur by the absorption of light will occur and it will sulfur trioxide decompose into sulfur dioxide and in oxygen gas ठीक है जी so ये back react करेगा वो भी at the same rate so dynamic equilibrium is attained photostationary state is attained where at this stage no further absorption of light bring about any chemical change so this is photostationary or photochemical equilibrium दूसरा है बेटा dimerization of di means two mer means part meros तो लेता mero di means two meros means parts ठीक है जी दो पार्ट यूनाइट कर जान डाइमेराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन ठीक है बेटा एंथ्रासीन अंडरगो डाइमराइजेशन दो यूनिट ਇਹਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ when its solution when the solution of anthracene when its solution in benzene solvent ਕਿਹੜਾ यूज़ ਕੀਤਾ benzene ਜਾਂ toluene benzene और toluene मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं ਜਿਹੜਾ है ना बेटा is exposed to UV light is exposed to ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਥਰਾਸੀਨ ਦਾ ਬੈਂਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੋਲੂਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਡਾਈਮਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ whereas in dark
फॉरवर्ड रिएक्शन जिहड़ा यूवी रेडिएशन च होना है डाइमराइजेशन, बैकवर्ड कि वो डिसोसीएट हो जाता बैक इनटू इस मोनोमर यूनिट, तो वो अकर करेगा इन थर्मल इन डार्क, वेयर एज in dark the backward reaction takes place। तो बेटा की ऑब्जर्व करोगे 2 मॉलीक्यूल एंथ्रासीन ਨੂੰ कंबाइन करके, वैसे बेटा एंथ्रासीन 3 मॉलीक्यूल ਜਿਹੜੇ बेंजीन ਦੇ ऑर्थो पोजीशन ਤੇ ਜਦੋਂ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, दिस इज़ एंथ्रासीन है ना। इनू इदा नहीं लिखना, तो फिर आ लै रहे हैं 2 मॉलीक्यूल C14H10 फॉरवर्ड रिएक्शन जिहड़ा लाइट च हुंदा यूवी की प्रेजेंस विच, ठीक है, डाइमराइज होके C28H20 हो जाना, बैकवर्ड रिएक्शन थर्मल होना, मोनोमराइज हो जाना। क्लियर बेटा, थर्मल होना। अगला बेटा थर्ड आइसोमेराइजेशन सिस ट्रांस आइसोमर किया ना बेटा, आइसोमराइजेशन, आइसो मीन सेम, मर मीन यूनिट है ना, स्पेस विच स्टीरियो आइसोमराइजेशन अपन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के डबल बॉन्ड के अराउंड जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ना 2 ग्रुप सेम या डिफरेंट लगे हुए 2 डबली बॉन्डेड एटम्स ना, तो जो दोनों ग्रुप सेम साइड पर प्रेजेंट है डबल बॉन्डेड, तो आप कहने सिस, जो ओपोजिट साइड पर तो आप कहने ट्रांस। सो बेटा इत्थे आप गल करनी है आइसोमराइजेशन ऑफ मैलिक एसिड इंटू फॉर्मेरिक एसिड। बेटा मैलिक एसिड जी सिस फॉर्म आ, सिस की है बेटा, सिस फॉर्म के दी है ऑफ ब्यूटीन डाइओइक एसिड की। फॉर्मेरिक एसिड की है ट्रांसफॉर्म ऑफ ब्यूटीन डाइओइक एसिड की, ठीक है बेटा। सो ये फॉरवर्ड रिएक्शन मैलिक एसिड जो सिस फॉर्म फॉर्मेरिक एसिड चेंज होएगी, दैट इज़ आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। जोड़ा फॉर्मेरिक एसिड है ट्रांसफॉर्म वो भी बैक मैलिक एसिड चेंज होएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो मैलिक एसिड में मैं अगर बेटा लिखा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, ये की होगी सिस फॉर्म ऑफ ब्यूटीन डाइओइक एसिड है ना। IUPAC नेम लिखना तो तुहानू पता होना चाहिए की होगा IUPAC नेम। 4 कार्बन है, वर्ड रूट हो गया बुट, डबल बॉन्ड है ईन है ना, तो ईन दी ई रिटेन रहनी है क्योंकि डी कॉन्सोनेंट ना शुरू हो रहा, वावल ना नहीं शुरू हो रहा। ईन पा के केड़ी पोजीशन दे -1,4 डाइओइक एसिड, क्लीयर, सिस फॉर्म हो गई, इनू कहने आ मैलिक एसिड। जो ये लाइट ये यूवी रेडिएशन फॉल करांगे तो ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाऊगा। एक ही हो जाऊगा बेटा ट्रांसफॉर्म के दी है बेटा, एक फॉर्मेरिक एसिड चेंज हो जाऊगा, नाम मैं थोड़ा दस चुकी हाँ। और बैक रिएक्शन फॉर्मेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म ट्रिस्ट चेंज हो जाएगी अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। क्लियर बेटा, इसका IUPAC नेम मैं दस चुकी हाँ, ठीक है। की है इसका नाम सिस, जिन्हें लिखना चाहते सिस बुटीन बुट टू ईन भी लिख सकते हैं, बुट टू ईन हाइफन पा के 1,4 हाइफन डाइओइक एसिड, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्लीयर, फॉर्मेरिक एसिड क्लीयर है। हुण लास्ट यदि एग्जाम्पल है बेटा ओजोनाइजेशन। ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो बेटा की होगा
3 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਫॉल ਹੋਏਗੀ फोटोकैमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ओजोन च चेंज हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन बैकवर्ड रिएक्शन भी ओजोन की जी है बैक डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन च होनी है अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सो ये ऑक्सीजन ओजोन फोटोस्टेशनरी स्टेट है ऑक्सीजन ओजोन फोटोस्टेशनरी स्टेट है और फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम फोटो स्टेशनरी स्टेट इज इंटरेस्टिंग ड्यू टू इट्स एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है एक नंबर चाहता ड्यू टू इट्स एग्जिस्टेंस ओजोन दी ड्यू टू इट्स एग्जिस्टेंस सो बेटा आप की देखते हैं कि जी ऑक्सीजन ओजोन जी फोटो स्टेशनरी स्टेट है बेटा दैट इज़ इंटरेस्टिंग ड्यू टू इट्स एग्जिस्टेंस इन द अपर एटमोसफेयर दैट इज़ इन द स्ट्रेटोस्फेयर इट इज़ दिस ओजोन which absorbs radiations, electromagnetic radiations between 200 to 300 nanometer. Oxygen does not absorb in this region. दैट इज़ यूवी रेडिएशन ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 200 ਤੋਂ 300 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ दैट इज़ यूवी रेडिएशन ਨੂੰ ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ओजोन ऑक्सीजन नहीं ਐਬਜ਼ੌਰਬ करता सो प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम ओजोन जी है प्रोटेक्ट्स द सो ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द these UV radiations otherwise इन्ना कैंसर कॉज हो जाता स्किन कैंसर यू नो ऑलरेडी सो बेटा हुण आपां गल करनी है इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिवर्सिबल फोटोकेमिकल रिएक्शन फॉर ए रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिवर्सिबल फोटोकैमिकल रिएक्शन बेटा हुण दो चीज़ां इहदे लई है जिहड़ा ऑर्डनरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिहड़ा है फॉर ए रिवर्सिबल फोटोकैमिकल रिएक्शन वो डिफरेंट होएगा दैन एन ऑर्डनरी कैमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन थर्मल इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे लई कांस्टेंट कैमिकल थर्मल कैमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे लई जिहड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ उहदे नालों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिहड़ा है फॉर ए रिवर्सिबल फोटोकैमिकल रिएक्शन डिफर करूगा क्योंकि जिहड़ा है रेट ऑफ फोटोकैमिकल रिएक्शन वो कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ते नहीं डिपेंड करता दैट डिपेंड रेट ऑफ फोटोकैमिकल रिएक्शन किते डिपेंड करता अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट अब्जॉर्ब आई अब्जॉर्ब ते है ना उत्ते डिपेंड करता है जबकि जिहड़ा थर्मल रिएक्शन है वो काते डिपेंड करता बेटा कॉन्सनट्रेशन ऑफ द थर्मल रेट ऑफ थर्मल रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ द रिएक्शन सो दोनों चीज़ों असीं कंसीडर करना है कि आपां एक वो फोटोकैमिकल रिएक्शन जिहड़ा फोटो स्टेशनरी स्टेट च लैना जिहदा फॉरवर्ड रिएक्शन की है फोटोकैमिकल बैकवर्ड रिएक्शन थर्मल रिएक्शन आ सो क्लीयर सो इनू मैं हुण लिखण लगी हाँ बेटा कि जिहड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ the equilibrium constant
of a reversible photochemical reaction is different from the इक्विलिब्रियम ਨੂੰ मैं इदा लिखन लगी हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ a thermal chemical equilibrium. This is because मैं दस चुकी हाँ क्यों ये डिफरेंट है. दिस इज़ बिकॉज द रेट ऑफ photochemical reaction depends upon the intensity of light absorbed. Whereas the rate of thermal reaction depends upon the concentration of reactant. Consider a journal reaction. Consider a journal reaction, reversible reaction. A get changed into B in the presence of light. Means forward reaction is इधरली rate constant है say K1. A get change into B by absorption of light. ਉਹਦਾ rate constant है K1. B back change हो ਜਾਂਦਾ into A in the presence of heat. Thermal reaction है backward reaction. So ਇਹਦਾ rate constant है K2. So रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इत्थे दा मतलब आ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जेड़ा आ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन ओके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा intensity of the light absorbed. So rate of forward reaction proportionality sign हटाऊंगी तो मैं constant यूज़ करूँगी K1 I absorbed. Say this is equation number 1. And backward reaction बेटा की है backward reaction rate of backward reaction that is rate of backward थर्मल रिएक्शन RB है ना. ओके तो प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की इतने होने है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ B. सो RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. ठीक है बेटा. हुन RB प्रोपोर्शनलिटी साइन हटावांगे RB इज इक्वल टू K2 रेट कॉन्स्टेंट है ना इनू कहने K2 into molar concentration of reactant B backward reaction. Say this is the question number 2. Now a stage is reached where rate of forward reaction becomes equal to backward reaction. So this is the question number 3. Means equilibrium has been achieved. केड़ा photochemical equilibrium means at photochemical equilibrium
बेटा तुसी इक्विलिब्रियम ही वर्ड यूज़ करना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ RF from equation 1 and RB from equation 2 in equation 3। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF के बराबर है बेटा K1 इंटू I absorbed इज इक्वल टू K2 इंटू मोलर कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। हुण आ रेट कॉन्सटेंट इधर लै जा, आ टर्म इधर लियावां, ठीक है जी, और आ टर्म इत्थे लियावांगे डिनोमीनेटर च आ जाएगी, आह डिनोमीनेटर च आ जाएगी, और I absorbed over molar concentration of B is equal to ratio of the rate constant in the backward reaction to that of the forward reaction. Division of two constant give rise to another constant, say K, capital K. So capital K is called photochemical equilibrium constant. So capital K is equal to I absorbed, intensity of light absorbed, to that of the concentration of the reactant in the backward reaction, where K is called photochemical equilibrium constant. ठीक है बेटा, depends upon the and it depends upon the intensity of the light absorbed. ठीक है बेटा, hence the concentration of product form in a photochemical reaction depends upon the intensity of light absorbed. क्लियर बेटा? हुण बेटा लास्ट टॉपिक आ फ्लैश फोटोलिसिस, फोटो मीनस लाइट, लाइसिस मीनस क्लीवेज। फ्लैश एकदम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी जो लाइट बेटा आम करके ऑर्डनरी फोटोकैमिकल रिएक्शन जोड़ा आ रिएक्टेंट्स से जोड़े नो एक्सपोज करते हैं टू द लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी, तो वो की होंदा आ कि जो लो इंटेंसिटी की आप लाइट फॉल करांगे तो की होगा बेटा, हाँ जी बेटा, फ्लैश फोटोलिसिस इसकी जरूरत क्यों पैंदी है? फोटो मीनस लाइट, दो वर्ड का बनया फोटो, लाइट, लाइसिस मीनस ब्रेकेज, ब्रेकडाउन, ब्रेकेज, क्लीवेज, ब्रेकडाउन, डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, फोटो मीनस लाइट, लाइट की प्रेजेंस विच कोई स्पीसी क्लीव करे। इन ऑर्डनरी फोटोकैमिकल रिएक्शन की होंदा बेटा? इन ऑर्डनरी photochemical reaction, the reactants are exposed to the radiations, electromagnetic radiations of low intensity, electromagnetic radiations of तो जे लो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तीव्रता ना नहीं पाया, बहुत घट मतलब लो इंटेंसिटी की लाइट फॉल की, तो रिएक्टेंट जोड़े है कंसीक्वेंटली जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने जिदा फ्री रेडिकल है ना, या कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣੂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦੇਅਰ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ, ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਸੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ। ਸੋ ਕੰਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਸੀਕੁਐਂਟਲੀ the concentration of reaction intermediate बेटा जिद्दां कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल है ना, सच एज फ्री रेडिकल, वो घट बनूगे क्योंकि वो हाईली एनर्जाइज्ड होगी, उन्होंने हाफ लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होगा, एज सून एज दे आर फॉर्म दे विल रिएक्ट, so such as free radicals. So concentration of reaction intermediates such as free radicals is very low. जो low intensity light fall की था over the reactants in a ordinary photochemical reaction, very low, जो बहुत घट होगी तो it is difficult to study। की कारण है फ्लैश फोटोलिसिस यूज़ करन दा, सो इट इज़ डिफिकल्ट to study the formation of reaction intermediates किद्दां बने, उन्हें स्टडी करना औखा हो जाता, कॉन्सनट्रेशन उन्होंने दी नू स्टडी करना, एंड रेट कांस्टेंट of photochemical reaction involving such reaction intermediates। फिर की करना पड़ेगा बेटा, कि ਆਪਾਂ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी है ना, रेडिएशंस वेरी इंटेंस, एकदम फ्लैश ऑफ लाइट जी ऑफ एनर्जी ऑफ अबाउट 10⁵ जाउल, बहुत ज़्यादा फास्टली, मतलब वेरी इंटेंस फ्लैश ऑफ लाइट, बहुत थोड़े सैकेंड ली, अबाउट 10⁻⁵ सैकेंड ਲਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਫੋਟੋਲਿਸਿਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾਈ ਫਲੈਸ਼ ਫੋਟੋਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ flash photolysis is a very useful technique for studying the reactions involving free radical means reaction intermediates and excited states. In this method, लाइट केड़ी फ्लैश ऑफ लाइट फॉल करनी है। इन दिस मैथड reactants are exposed to a very intense flash of light and light of energy
हाईली एनर्जाइज्ड फ्लैश ऑफ लाइट फॉल करनी है ऑफ अबाउट 10⁵ joule for very short duration, for very short duration of about 10⁻⁵ second. 10⁻⁵ second ਦੀ फ्लैश ऑफ लाइट ऑफ हाई एनर्जी पानी है उस रिएक्शन रिएक्टेंट से तो ये जी फ्लैश ऑफ लाइट है पावरफुल वो इनिशिएट कर दोगी फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड प्रोड्यूसेस ए मच हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट हेयर यू कैन से फ्री रेडिकल. दिस powerful flash of light initiates the photochemical reaction and produces a much higher concentration of, that is 10⁻⁵ molar of free radicals or reaction intermediates. The concentration of reaction intermediates ਹੁਣ काफ़ी ज़्यादा आ गई तो आप ਉਹਦੀ स्टडी कर सकते हैं. प्रोड्यूस्ड बाय फ्लैश फोटोलिसिस is observed as a function of time, observed as a function of time after flash of light, after the flash, by absorption spectrometry. ठीक है. In some cases rate constant of photochemical reactions have been calculated by this method. For example, a reaction between, obviously photochemical reaction between chlorine and oxygen has been studied by flash photolysis. The only reaction intermediate form by flash photolysis is ClO free radical.
ऑड इलैक्ट्रॉन इनू कहने क्लोरो मोनो ऑक्सी फ्री रेडिकल क्लोरो एक ऑक्सी ना तो मोनो ऑक्सी फ्री रेडिकल यह बनता दिस रेडिकल undergoes decomposition to form the product and reaction follows second order kinetics ਇਹਦਾ मतलब की होएगा क्लोरीन भी सी ठीक है लाइट फॉल हुई वो क्लोरीन एटम च चेंज हो गया क्लोरीन फ्री रेडिकल च चेंज हो गया सानू ये नहीं मिलता क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं मिलता केड़ा मिलता सिर्फ क्लोरो मोनो ऑक्सी फ्री रेडिकल तो ऑक्सीजन भी जिहड़ा वो क्लीव हो जाऊगा थानू पता डबल ऑक्सीजन हुंदा डबल बॉन्ड हुंदा दोनों ऑक्सीजन एटम एक क्लीव करोगे तो ये सानू दे दूगा डाई रेडिकल दो ऑक्सीजन डाई रेडिकल जिहड़े कि सानू नज़र नहीं आने थोरैटिकली दस रहे आपां डाई रेडिकल दो फ्री रेडिकल पेयर स्पिन होएगी उन्होंने ठीक है पेयर नहीं अनपेयर्ड स्पिन होएगी डाई रेडिकल है ना हुण क्लोरीन फ्री रेडिकल जिहड़ा ऑक्सीजन डाई रेडिकल ना कंबाइन करेगा तो सानू ClO देगा ठीक है जी इनू की कहने हैं क्लोरो मोनो यही मिलना सिर्फ सानू क्लोरो मोनो ऑक्सी फ्री रेडिकल ठीक है सो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉर्मेशन है ना ये रेट ऑफ रिएक्शन जोड़ा वो ये डिपेंड करेगा इमीडिएटली एज सुन एज इट इज़ फॉर्म इट विल react to form other reactant with the other reactant to form the product तो obviously rate of reaction जोड़ा वो कितने डिपेंड करूँगा यदी कॉन्सेंट्रेशन से बेटा क्लोरो मोनो ऑक्सी फ्री रेडिकली सानू ऑब्जर्व होना यदी कॉन्सेंट्रेशन तो ही असी बहुत सारिया चीज़ां फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये जो क्लोरो मोनो ऑक्सी फ्री रेडिकल आ ये कंज्यूम होगा और डिक्रीज़ होगा आपस में या किसी होर रिएक्टिंग स्पीसी नाल रिएक्ट करके ठीक है ये कंज्यूम होगा तो डिक्रीज़ इन यदी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करूँगी है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ इतने माइनस का साइन मतलब डिक्रीज़ करूँगी कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जोड़ा वो डिपेंड करेगा एंड दैट इज़ इक्वल टू आप क्या ऑब्जर्व की ऑब्जर्व अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्व रेट ला अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वड रेट ला एक्सपैरीमेंटली जो ऑब्जर्व किया थोरैटिकली नहीं आप करना इतों सानू लगता कि यह फर्स्ट ऑर्डर है बट इट इज़ ऑफ सैकेंड ऑर्डर ऑब्जर्वड रेट ला के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जोड़ा वो जिधर में घटेगा और रिएक्ट करेगा वो कि बराबर होएगा कि सैकेंड ऑर्डर है यदी कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स से डिपेंड करेगा क्लीयर बेटा इन्ना यह टॉपिक खत्म बेटा हुण रह गया सिर्फ एस photochemistry to the photochemistry of carbonic compound नॉरिश टाइप 1 नॉरिश टाइप 2 तो वो मैं थानू कल करवाना उन्ना ये सारा 2 यूनिट साडे खत्म हो जाने फिर इनऑर्गेनिक शुरू करनी है।